एक मिनट। अदीबा प्लीज अपना कैमरा खोलिए, ये पिक्चर हटाइए। हाफिज हमजा कैमरा खोलिए। ओके वानिया, स्टार्ट रीडिंग। Hazrat, she used to feed the poor and needy very generously. She was called वानिया, आई कैन नॉट हियर यू बेटा। mother of the poor. Her first marriage वानिया was सॉरी बेटा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी, Hazrat बहुत हल्की। Abdullah bin. आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ नेट इशू। वानिया, इज देयर अ नेट इशू? The Prophet the Holy नो बेटा, Prophet आई कैन नॉट। sallallahu alaihi wasallam in third Hijrah dead by 2 or 3 of ओके, हाफिज हमजा, हाफिज हमजा। हाफिज हमजा, फातिमा खोसो, फातिमा खोसो, स्टार्ट रीडिंग। हजरत जैनब बिनते खुजैमा, दोबारा से पढ़िए बेटा। वानिया की आवाज असल में सही नहीं आ रही थी। Hazrat Zainab bint Khuzaimah radhiyallahu anha. Since अनहा, since she used to feed the poor and needy very generously, she was called Yumul उम्मुल मसाकी, Masaki, mother of the poor. Her first marriage was to Hazrat Abdullah bin जहश, Jahash and who was martyred in the मार्टियर्ड, in the battle of Uhud. The Holy Prophet ﷺ married her in 3 हिजरी। that she died 2 or 3 months she and Hazrat Khadija anha, were the only 2 wives of the Holy during his lifetime. She was also buried in Jannatul बकी, जन्नतुल बकी। अच्छा, अब आप इसमें ये इसका बॉक्स बताइए, बॉक्स में क्या लिखा है फातिमा? Do you know Hazrat Zainab bint Khuzaimah was the only mother of believers whose funeral prayer was conducted by the Prophet himself. The command for funeral prayers was first revealed at time. एट दिस टाइम, ठीक है ना। यानी कि हजरत आयशा का हमने पता कर ली, हमें पता है कि शी वाज द वन हु नरेटेड द मोस्ट अहादीस। फिर उसके बाद हजरत जैनब वाज द वन हु सुपरवाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुरान करीम। एंड अब हजरत जैनब बिनते खुजैमा का की क्या खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके बारे में जो खास पॉइंट है वो क्या है कि हर funeral prayer was performed by Hazrat the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, and at her death the command for funeral prayers was first revealed at this time. Okay, आगे अदीबा, अदीबा start reading next. Hazrat उम्मे सलमा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, अदीबा जोर से पढ़िए, माइक करीब करिए बेटा। सॉरी अदीबा, अदीबा
आवाज नहीं आ रही। फाकिहा आप पढ़िए, फाकिहा आप पढ़िए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह, her real name was Hind and her kainat was Umm Salma. Her father कुन्नियत, Kunyat was Umm Salma. Her father was Abu Umayya and her mother name was उमैया, अबू उमैया, Abu Umayya and her mother's name was Atika. She was married to Hazrat Abdullah bin Abdul Asid Raziyallah, who was the sister brother of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. She converted to Islam together with her husband. She migrated with him to Abyssinia. एबिसीनिया, इथियोपिया, Abyssinia, where her son Salma was born. Her husband was seriously injured in the Battle of Uhud and died soon after. After time later, in 4 Hijri, she married the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. She was an intelligent and wise woman. Next to Hazrat Aisha Radhiyallahu anha, she was the best in relating a hadith of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Death. She died in 58 Hijri. She was 84 when she passed away. ओके। एंड व्हाट वाज हर स्पेशल, एक फाकिहा, उनकी क्या स्पेशल क्या लिखा हुआ है, डू यू नो? Hazrat Umm Salma Raziyallahu was the last of the mother of believer to pass away. यानी कि सबसे आखिर में जिन उम्महातुल मोमिनीन का, जिन उम्मुल मोमिनीन का सबसे आखिर में इंतकाल हुआ, वो हजरत उम्मे सलमा है। ठीक है, ओके जी। अब्दुल हादी जी पढ़िए। Zainab bint Jahsh radhiyallahu ta'ala अनहा, her mother was Anha. Her mother was Umayma bint Abdul Muttalib, who was the sister of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's father. Thus, she was his cousin as well. A very pious and abstinent woman. Pious and Pious. abstinent woman. She used to labor with her hands and give her all earnings in charity to the needy. She was hence called Mawa al-Masakin, sanctuary of the poor. Mawaul Masakin. Mawaul Masakin, sanctuary of the poor. She was the first married to Zaid bint Haris radhiyallahu ta'ala anha, who was the adopted son of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. But they were not compatible and separated. In those days, marrying an adopted son's divorced wife was not acceptable. But Allah Almighty clearly revealed to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that in Islam this kind of importance is not given to foster relationships. He was also given the good news of his marriage to Hazrat Zainab radhiyallahu ta'ala anha, having been performed in the heavens. So in 5 Hijri, he was married to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Death. She passed away in 20 Hijri. She had arranged for her own shout. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anha led the funeral prayers. Do you know Hazrat Zainab bint Jahsh radhiyallahu ta'ala anha was only one of the Ummul Mumineen whose marriage to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was performed at the command of Allah Almighty. She always thanked him for his unique status. यूनिक जी, यानी कि हजरत जैनब कौन थी? हजरत जैनब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजाद बहन, कजिन थी। ठीक है ना? और ये कैसी थी? शी वाज अ वेरी पायस एंड एब्स्टिनेंट। पायस मतलब अल्लाह से डरने वाली, और एब्स्टिनेंट परहेजगार, यानी कि हर बुरी कामों से, हर छोटे बड़े बुरे कामों से दूर रहती थी। शी यूज्ड टू लेबर, वो मेहनत करती थी विद हर हैंड्स,
अपने हाथों से मुशक्कत मेहनत करती थी, और फिर जो पैसे जो भी उनको मिलते थे, व्हाट डिड शी डू विद इट, वो पैसे किसको दे देती थी, किसमें दे देती थी जी, what did she do with the money she earned? Anybody is going to answer me? मैं 100 पैसे नीडी को दे देती थी चैरिटी में। Exactly. She gave that hard earned money in charity. ऐसे ही, और इसलिए उनका क्या लक़ब था, what was her what was she called? She was called Mawaul Masakin, sanctuary, यानी के शेल्टर, यानी कि अगर कोई शख्स बहुत तकलीफ में परेशानी में है तो उसको कौन अपने पास पनाह देगा, शेल्टर देगा। दैट वाज उनका ठिकाना, जो परेशान हाल लोगों का ठिकाना कहाँ है, हजरत ज़ैनब बिनते जहश के पास। शी वाज एट फर्स्ट, और उनकी शादी पहले किससे हुई थी, हजरत ज़ैद बिन हारिस। एंड हु वाज ज़ैद बिन हारिस? ज़ैद बिन हारिस जो थे वो आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अडॉप्टेड सन थे, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हजरत ज़ैद बिन हारिस जो थे, एक्चुअली ही वाज अ स्लेव, लेकिन उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही प्रोक्लेम्ड हिम एज हिज सन, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान कर दिया था। और इसका मैं वाकया आप लोग जब 8 में जाएंगे तो अब आप लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, कि ज़ैद इज माय सन नाउ। तो फिर और इनकी शादी किससे हुई थी, हजरत ज़ैनब की हुजूर सल्लल्लाहु विद द अडॉप्टेड सन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किससे हुई थी? अडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड का मतलब क्या है, रियल सन नहीं थे, राइट। उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्लेम किया था कि ही इज माय सन, मैं ये मेरे बेटे की तरह। हम कहते हैं ना मुंह बोला बेटा, मुंह बोला बेटा, ठीक है ना, ले पालक या मुंह बोला। तो फिर लेकिन क्या हुआ कि इनकी शादी जो है वो ज्यादा दिन तक चल नहीं सकी, एंड दे वर सेपरेटेड, डाइवोर्स हो गई थी। तो जब डाइवोर्स हो गई तो डाइवोर्स के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह हो गया था। किसका? हजरत ज़ैनब बिन्ते जहाश का। और किसने किया था? ये अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था। तो इसीलिए अल्लाह रिवील टू दैट इन। अच्छा, अब क्यों, अच्छा अब इसमें एक खास बात ये है कि अच्छा इसमें एक चीज और भी है कि अल्लाह ताला ने ये बात क्लियर कर दी कि अगर कोई अडॉप्टेड सन या अडॉप्ट फॉस्टर जो रिलेशन मुंह बोले रिश्ते होते हैं, उनकी अहमियत वैसी नहीं होती जैसा कि रियल रिश्तों की होती है। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है, and so in 5 Hijri she was married to the holy prophet. She passed away in 20 Hijri. She had arranged for her own shroud. Shroud किसे कहते हैं? SHROUD, shroud। shroud किसे कहते हैं Funeral pyres. जी? प्लीज रिपीट। Miss are funeral pyres. नहीं, फ्यूनरल प्रेयर नहीं, श्राउड कहते हैं कफन को, जो कफन का वाइट कपड़ा होता है उसको कहते हैं श्राउड। एंड और हजरत उमर लेड द फ्यूनरल प्रेयर्स, और उनकी फ्यूनरल प्रेयर किसने पढ़ाई थी? हजरत उमर ने। अच्छा, अब इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात यह है कि हजरत ज़ैनब बिन्ते जहाश was the only one of the Ummul Mu'minin whose marriage to the Holy Prophet was performed at the command of Allah the Almighty। यानी कि इनकी जो निकाह हुआ था हजरत ज़ैनब का, ये अल्लाह के हुक्म से हुआ था। She always thanked him, यानी और ये हमेशा अल्लाह ताला का इस चीज पे शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ताला ने उनको ये स्टेटस दिया कि उनका निकाह खुद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया। अच्छा जनाब, अब इसमें थिंक एंड आंसर में है व्हाट इज मेंट बाय उम्महातुल मोमिनीन, ठीक है। तो उम्महातुल मोमिनीन के बारे में हम ये बहुत अच्छी तरह मैं आपको डिटेल में
बता चुकी हूँ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है आप लोग ये क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर्स पे, क्वेश्चन आंसर्स में आइए। एक्सरसाइज, व्हाट वाज द नेचर ऑफ हजरत आयशा लाइफ? हजरत आयशा की आदतें कैसी थी, उनकी फितरत, उनकी तबीयत, वो किस मिजाज की थी, ठीक है ना। She was extremely pious. Hazrat Aisha was extremely pious, intelligent, exceedingly generous, had great self-respect and lived a simple, frugal life. She never missed the chaste prayer and she fasted regularly, performed Hajj every year, and freed 67 slaves in her life. Page 59. Got this? मिल गया आप लोगों को सबको? Everybody found the answer? अब्दुल हादी, वानिया, हाफिज हमजा, रेहान, रामेश, सबके Yes, कैमरे ही ऑफ है, सबके कैमरे ऑफ है। मुझे लग रहा है मैं दीवार से बातें कर रही हूँ। वानिया, अपना कैमरा ऑन रखिए। रेहान, हाफिज हमजा, ठीक है, फिर मैं आप लोगों की तो एब्सेंट ही मार्क करने वाली हूँ ना। राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट हजरत हफ्स। अच्छा, फाकिया, ओके, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। व्हाट वाज द नेचर ऑफ हजरत आयशा लाइफ? ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज हर नेचर, उनका यस वानिया, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। हजरत आयशा, ऑन पेज 59 पे जाएं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हजरत आयशा वाज, शी वाज एक्सट्रीमली, आप शी के बजाय हजरत आयशा लिखेंगे। हजरत आयशा वाज एक्सट्रीमली पायस, intelligent, exceedingly generous, had great self-respect, and lived a simple, frugal life. She never missed the chaste prayer. She fasted regularly, performed Hajj every year, and freed 67 slaves in her life. ठीक है, ये आएगा। उसके बाद है write a few lines about हजरत हफ्सा। अच्छा, अब आप लोग खुद लिखेंगे इसके बारे में, ओके, आई डोंट हैव टू, और कम से कम 5 लाइंस लिखेंगे, बल्कि 5 भी नहीं है, इसमें डू यू नो का बॉक्स जो है इसका भी पॉइंट आप उसमें शामिल करेंगे। ओके, यू आर गोइंग टू इंक्लूड द पॉइंट फ्रॉम द डू यू नो बॉक्स ऑल्सो। उसके बाद है राइट टाइटल्स, व्हाट टाइटल्स वर गिवन टू हजरत ज़ैनब बिन्त जहश एंड हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा। टाइटल्स लिखने हैं जी, बताइए, गिव मी द आंसर। मिस हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा को मिला था उम्मुल मसाकिन और ज़ैनब बिन्ते जहाश को मिला था मवाउल मसाकिन। वेरी गुड, बस ओके। उसके बाद है नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ उम्मे सलमा बिफोर हर मैरिज टू द प्रॉफिट। हजरत उम्मे सलमा का जब निकाह हुआ था उससे पहले उनकी जिंदगी के हालात क्या थे, व्हाट हैपेंड इन हर लाइफ, ठीक है मिस उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। शी वाज मैरिड, जी आपको इनके बारे में लिखना है कि व्हाट वाज हर लाइफ। Her real name was Hind and her kunyat was Umm Salma. Her father was Abu Umayya and her mother's name was Atika. She was married to Hazrat Abdullah. अच्छा, ये सब आपको नहीं लिखना है, बल्कि आपको लिखना है हजरत उम्मे सलमा was married to Hazrat Abdullah bint Abdul Asad, who was the foster brother of the Prophet. And she converted to Islam together with her husband. She migrated with him to Abyssinia, Ethiopia, where her son Salma was born. Her husband was seriously injured in the Battle of Uhud and died soon after. ये आपको लिखना है, ठीक है, what happened before her marriage to Prophet sallallahu alaihi wasallam. उसके बाद है जनाब, what is the next question? What was the name of the first husband? What was the name of the
first husband of Hazrat Zainab bint Jahash and how was he related to Holy Prophet? यानी कि हजरत जैनब बिन्त जहाश के फर्स्ट हस्बैंड का नाम क्या था और उनका होली प्रॉफिट से क्या रिश्ता था? Miss, he ये was आपको Hazrat Zaid bin Haris and he was the adopted son of Holy Prophet. गुड, वेरी गुड। ओके, मुझे पता है क्या लगता है, एक दो बच्चे जवाब दे रहे थे, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले रही हूँ,